Greetings all of you, welcome back to KM Anshul Study Channel. Today we will do class 8th 11th unit, that is mensuration exercise 11.2. So first of all, mensuration include three main things, that is perimeter, area and volume. In this unit there are four exercises, that is exercise 1, exercise 2, exercise 3 and exercise 4. Exercise 1 is about perimeter and exercise 2 and 3 are about area and exercise 4 is about volume. So today we will do exercise 11.2, first 5 questions. So in exercise 11.2 it is basically about trapezium. It is basically about trapezium and rhombus. So first of all you have to know what is trapezium and what is rhombus. What is trapezium and what is rhombus? Trapezium is like this, a little bit like this, not fully like this, it a little bit like this, and rhombus is like this. So in this exercise we have to calculate the area of trapezium and rhombus. Of area of trapezium है, first of all you have to learn all the formula that are mentioned in the book. Area of trapezium is 1/2 into height plus sum of parallel side. Maybe you all know what are parallel sides, but I will also make you understand what are parallel sides. Two lines that goes against each other are called parallel sides or parallel lines. It is parallel to this line, they are going against each other. So let's start. Next is, and what is this? Height. Where does this height come? हाइट हमारी ये होती है, ये हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं और ये हमारी फिगर है ट्रेपीजियम. नाउ रोम्बस. रोम्बस का एरिया होता है 1/2 और हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. इट इज आवर डायगनल 1, इट इज आवर डायगनल 2. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.2. So it is exercise. Today we will do only first 5 questions. So let's start. Our first question is, the shape of top surface of a table is trapezium. एक टेबल है, उसकी टॉप सरफेस की शेप ट्रेपीजियम है. जनरली हमने टेबल्स देखी है, उनकी शेप सर्कुलर होती है, बट यहाँ पे एक टेबल के टॉप सरफेस की शेप ट्रेपीजियम दिखाई गई है. हमें उसका फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. हमें उस शेप का एरिया निकालना है, हमें बस इतने का एरिया निकालना है. अगर उसकी पैरेलल साइड 1 मीटर दे रखी है, एक साइड हमें 1 मीटर दे रखी है एंड एक साइड हमें 1.2 मीटर दे रखी है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड उनके बीच में जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हमें 0.8 दे रखी है. So let's calculate its area. It is area of table is 1. मैंने आपको बताया था ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स 1/2. हाइट हमारी है 0.8. वी कैन ऑल्सो राइट इज 8/10 और प्लस में 1 प्लस 1.2 2 इट्स 4/10 एंड अंदर आ गया हमारा 2.2 और वी कैन राइट इज 22/10 लाइक दिस. 22 4 88/100. Our answer is, अगर ये यहाँ 20 होती है तो डेसिमल यहाँ लग जाता है 2 डिजिट्स के आगे, तो आंसर आ गया हमारा 0.88 मीटर. स्क्वायर लगाना कभी मत भूलना. दिस इज ओनली आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ वेरी इजी. नाउ वी मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. The area of trapezium is 34 centimeter and the length of one of the parallel side is 10 centimeter. इस क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है और हमें एक पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है. हमें दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है. So first of all write down what is mentioned in the question. Area of trapezium. What is the area of trapezium given? Area of trapezium given is 34 centimeter square.
First of all, write here the formula 1/2 into height. We can write parallel side as a plus b is equal to 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी हमें क्या क्या मेंशन है? 1/2 हमें हाइट मेंशन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और हमें एक पैरेलल साइड मेंशन है, दैट इज 10 प्लस बी. इसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए. अब आगे 34 सेंटीमीटर, ये ऐसे कट गया, हमें बचा 2. 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट मल्टीप्लाई इट, 20 प्लस 2b इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी इस सेंटीमीटर को अभी यहाँ भूल जाओ कि ये कुछ है, तो इससे हमें काट देता है. इसमें 2b, ये 20 उस साइड ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस में चला जाएगा और आंसर आएगा हमारा, क्या आंसर आएगा? 14. बी हम यहाँ आएंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो हमारी बी की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर. मतलब आंसर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. So let's move to our next question, that is question number 3rd. It is mentioned that length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120. अब आप लेंथ से क्या सोचेंगे? आपको एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड की लेंथ दे रखी है, मतलब इसका मतलब है आपको उसका पेरीमीटर दे रखा है. कहीं भी आपका लेंथ वर्ड आ जाए तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं. जैसे ये हमारा A, ये हमारा B एंड इट इज C एंड इट इज D. इसका पेरीमीटर है 120 मीटर. अगर BC ये हमारा, अगर BC 48 है और CD कितना है 17 और AD है 40, सॉरी AD इज 40, तो मैं ये साइड तो नहीं पता, तो मैं आती है बस बाय सम ऑफ ऑल साइड. तो हम लिखेंगे लेंथ कितनी दे रखी है हमें 120, और बनता किससे है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DC. इसका आना चाहिए 120. तो AB हमें मेंशन ही हम इसे ऐसे ही लिख देंगे. BC है 48, CD है 7, सॉरी AD, इट इज AD, सॉरी बाय मिस्टेक. अब 48 है, CD हमारा कितना है 17 और AD है 40 इज इक्वल टू 120. अब हमें इसकी निकालनी है 40 और 88 प्लस 17 कितना हुआ 105. तो AB प्लस 105 इज इक्वल टू 120. ये 105 उस साइड जाके ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मीटर. AB यहाँ 15 आएगा. तो अब हमें क्या करना है? इतना इजी क्वेश्चन हो गया है. अभी हमें इसे पूछा है कि अगर एरिया इस फील्ड का निकालना है, ये ट्रेपीजियम शेप फील्ड है, अगर AB परपेंडिकुलर है AD और BC की. अब हमें पैरेलल साइड मिल गई, एक है AB एंड एक है ये, और ये बीच में परपेंडिकुलर है मतलब हाइट है. तो हम इजीली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैंने बताया था 1/2 इंटू हाइट A प्लस B. हाइट हमारी कितनी दे रखी है? हमें बता रखा है कि परपेंडिकुलर है, ये 15 हाइट है, और A प्लस B मतलब 40 प्लस 48, 1/2 इंटू 15 और 88. तो ये कट गया 44, आ जाएगा हमारा आंसर 660 मीटर स्क्वायर. तो इस ट्रेपीजियम शेप फील्ड का एरिया आ गया हमारा 660 मीटर स्क्वायर. डोंट फॉरगेट टू मार्क स्क्वायर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई कि एक होते हैं हमारे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, व्हाट वी कॉल इट स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स. उनकी शेप मैं आपको बना के दिखाती हूँ और आई कैन मार्क यू इन द बुक. इस टाइप के होते हैं वो. अब हमें बोला गया है कि डायगोनल्स दे रखे हैं. डायगोनल हमारा 24 है और उसमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं वो 8 और
13 के हैं, तो हमें एरिया निकालना है। ऐसी शेप को जिसमें एक डायगोनल और 2 हाइट्स दे रखी होती है हम हमें स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंड दैट area of spatial quadrilateral, we call this figure is spatial quadrilateral. Area of spatial quadrilateral is equal to 1 by 2 into diagonal h1 plus h2। समझ आ रहा है? डायगोनल हमने बताया कि 24 है और h1 है 8 और h2 है 13। इट 1 and 12 and 21 हो गया ये। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, दैट हमें रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे, हमें उसका एरिया निकालना है। सो फर्स्ट रिमाइंड दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1 by 2। मैं आपको फिगर की हेल्प से भी समझाऊंगी। सपोज करो ये हमारा रोम्बस है, इसके 2 डायगोनल दे रखे हैं, एक ये डायगोनल है एक ये डायगोनल, इनकी लेंथ दे रखी है 1 by 2 इंटू, अब हम इसको 75/10 इजीली लिख सकते हैं और एक 12, तो 2 6 75 6 450 अपॉन 10। सो ये डेसिमल यहाँ है तो एक डिजिट के बाद लग जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस का एरिया आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप you all understand this video and these first 5 questions. Tomorrow we will do next 5 questions. So bye, thank you, have a nice day, and please like, share and subscribe.